Welcome students. Today I am going to discuss about the anatomical basis of gastrointestinal absorption. As we know, the stomach is a poor absorptive area of the gastrointestinal tract because it lacks the typical villus type of absorptive membrane. Only a few highly lipid soluble substances such as alcohol and some drugs like aspirin can be absorbed in small quantities in stomach. So let's the absorptive surface of the intestinal mucosa, that is known as villi. Okay, here is the diagram showing longitudinal section of small intestine. Okay, absorptive surface of the intestinal mucosa showing many folds. First is the valvuli conjunctis. आप देख सकते हैं ये हमारा outer surface. Inner surface is folded. Mucosa is the innermost layer of the intestinal wall that is folded. There is a finger-like projection. So this folding is known as valvuli conjunctis. Due to the presence of this fold, surface area of the absorptive mucosa increases about 3 folds. Okay, आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है 3 folds. तो इस फोल्डिंग की वजह से जो इनर लेयर है म्यूकोसा की, उसकी जो फोल्डिंग है उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है दैट इज 3 टाइम्स जो है इंक्रीज कर जाती है किसी भी नॉर्मल प्लेन सरफेस से. ओके, एंड नाउ फर्दर valvular conjunctis is also covered by the further folding that is known as villi. आप देख सकते हैं कि एक ऐसी फोल्डिंग है और फिर उसके ऊपर से भी आपको ये फोल्डिंग. So these are all villi. So first is this and second is villi. Okay, so due to the presence of villi folds, that is another 10 folds increases the absorptive surface area of the mucosa. तो इसकी वजह से जो है villi, जो कि हमारा एक ये जो है 8 मिलीमीटर इन लेंथ है और इसके बाहर जो है ये villi, इसकी जो लेंथ हो रही है अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर. इट मीन्स जो हमारा फूड है, यहाँ आप समझ सकते हो कि ये हमारा जो ल्यूमेन है दैट इज़ फूड मूवमेंट आपको शो किया गया है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ फूड मूवमेंट. ये यहाँ पे हमारा जो है ल्यूमेन में पूरा इंटेस्टाइन में क्या है दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फूड कंपोनेंट. कार्बोहाइड्रेट के एंड है दैट इज मोनोसेक्राइड्स, एंड प्रोडक्ट है. प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है अमीनो एसिड, और फैट के जो एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. दे आर प्रेजेंट हियर. सो विलाई इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फूड. तो हमारी बिलाई के जो सरफेस है वो जो है डायरेक्ट हमारे फूड के एंड प्रोडक्ट्स के कांटेक्ट में है. ओके, तो हमारा जो ये सरफेस एरिया जो हमने शो किया कि फर्स्ट वल्वुली कन्वर्टिस एंड सेकंड इज द विलाई, ये जो 2 पॉइंट्स है ये कितना इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया? 3 फोल्ड्स हमारा वल्वुली कन्वर्टिस कर रहा है एंड अनदर विलाई जो है वो हमारा 10 फोल्ड कर रहा है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 फोल्डिंग टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हियर दैट इज 30 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 2 के कॉम्बिनेशन से 30 फोल्ड्स. ये हमारे 30 फोल्ड्स इंक्रीज हो गया. किसी भी प्लेन सरफेस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 30 टाइम्स ज़्यादा ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को. ओके, so let's next diagram. This diagram showing the LS of villus. This is the LS of villus and this one is the CS of villus. Okay, CS, LS means longitudinal section and CS means cross section. तो अगर हम किसी विलाई का डायग्राम देखें तो हमें एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या दिखेगा और क्रॉस सेक्शन में क्या दिखेगा. सो लुक हियर, इन longitudinal section there is a presence of, okay, there is a presence of, आप देख सकते हो this one is a vein
उससे हमारी ये वेन्यूल्स जो है अटैच्ड हैं. ओके, एंड नेक्स्ट दिस वन इज़ द आर्टरी, और आर्टरी से जो है ये आर्ट्रियोल्स कनेक्टेड है. ओके, and in center it is very important structure that is central lacteal. This is the central lacteal which is connected with the lymphatic vessel. ये हमारा एक central lacteal जो एक यहाँ पे lymphatic vessel से connected मिलेगा आपको. ठीक है, ये हम anatomical structure ही सिर्फ आपको शो कर रहे हैं. So this central lacteal is very important. आप देख सकते, this is the central lacteal. In central lacteal, fatty acid and glycerol that absorb in central lacteal. Actually fatty acid और हमारी जो है वो क्या है, fatty acid that is the hydrophobic or non-polar content, and amino acid, glucose, salt, ये जो हमारे हैं food component, amino acid and glucose which are hydrophilic and polar. ठीक है, तो इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो रहा है डायरेक्टली, और ये जो है हमारे मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो विलाई से इंटर करते हैं. तो इसके लिए जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगी, तो हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंसेस हैं वो जो है कैरियर प्रोटीन के थ्रू इंटर करते हैं. हम लोगों ने देखा है अमीनो एसिड और ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के एब्जॉर्प्शन में कि वहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और या एक सब कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है. बट जो हमारी हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं लाइक फैटी एसिड, दे एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूज़न. ओके, तो ये हमारी यहाँ पे चूँकि लिपिड बाइलेयर की बात करेंगे तो वो उसकी वजह से जो फैटी एसिड है वो हमारी डिफ्यूज़ होके अंदर आ जाती है और सेंट्रल लैक्टियल में एंटर कर जाएगी. ओके, बाय सिंपल डिफ्यूज़न. बट हमारा यहाँ फोकस क्या है, हमने आपको सिर्फ फोकस किया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को बेसिकली. एंड इन दिस डायग्राम, इस क्रॉस सेक्शन में हम देख सकते हैं आपको सेंट्रल में एक सेंट्रल लैक्टियल का टीएस होगा, साइड वाइज में ये वेन्यूल का यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, वेन्यूल. एंड देन आपको इस साइड में आपके आर्टेरियोल्स दिख रहे होंगे, आर्टेरियोल्स का टीएस आएगा. ओके, और साइड बाय साइड ये जो नेटवर्क दिख रहा है दैट इज़ द कैपिलरी, वो आपको वेन्यूल्स, कैपिलरी. ओके, ये आपको कैपिलरीज दिखेंगी. ओके, एंड नेक्स्ट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है. ओके, एंड दीज आर द सेल्स, ये आपको सेल्स दिख रही हैं, बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस है. तो ये सेल्स हमारी जो है एंटेरोसाइट्स हैं, जो इंटेस्टाइनल की जो है मेन जो एपिथेलियल सेल है. एंड फाइनली आउटर सरफेस में आपको जो दिख रहा है दैट इज़ पीच कलर, that is breast border. Okay, it is very important structure for the absorption. So next diagram, look here, this is a diagram showing the single cell. Okay, single cell कैसे हम कहेंगे, there is a presence of mitochondria, endoplasmic reticulum, pinocytic vesicle which shows that there is a single cell. Each epithelial cell having brush border and number of microvilli which make the brush border which are 600 in number. आपको ये जो दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सरफेस एरिया इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होगा. सो ईच the 1 microvilli 1 millimeter in length and 0.1 millimeter in diameter increases the surface area another 20 folds. Okay, ये हमें जो ब्रश बॉर्डर जो दिख रहा है ये हमारा एक अनदर जो है 20 folds जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है. तो टोटल जो कॉम्बिनेशन जो हो गया फोल्ड्स के, एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोल्ड्स देयर इज अ 600 folds. 3 टाइम जो है फोल्डिंग जो 3 folds इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वल्वुलरी कन्वेंटिव्स. 10 folds increases due to the presence of villi, and 20 fold that is the
caused by the presence of microvilli, a brush border. Okay, so total increased surface area in comparison to plain surface, that is 600 fold. किसी भी प्लेन सरफेस की कंपेरिजन में हमारी जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया जितनी 3 टाइम्स हमने शो किया उसको 3 तरह के स्ट्रक्चर फोल्डिंग्स प्रेजेंट हुई, वो हमारी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं 600 फोल्ड्स. ओके, सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर. बात समझ में आ रही है आपको? मैं इसको फिर से समझाना चाहूँगी कि आपकी जो फर्स्ट किसी भी एरिया का अगर कोई आपके सामने एक टीएस हमने लिया, अगर कोई डायग्राम ले लीजिए, ये इनर वॉल है मान लीजिए, दिस इज द प्लेन सरफेस एंड व्हेन सपोज देयर इज अ फोल्डिंग्स, ये हमारी इंटेस्टाइनल एरिया है. ये मान लीजिए, तो ये हमारी फोल्डिंग, तो ये हम सपोज करिए अगर हमने ओसोफेगस के थ्रू टीएस लिया हो तो ये हमें ये स्ट्रक्चर मिल सकता है, क्योंकि उसकी ओसोफेगस में कोई भी फोल्डिंग्स आपको नहीं मिलेगी. बट इंटेस्टाइन में अगर हमने टीएस लिया हो तो आपको ये अगर इतना एरिया देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक जो है एक आउटर वॉल मिलेगी, देन एक जो है एक ये फोल्डिंग मिलेगी, और दूसरी जो है इसके अंदर की बात करें तो फिर इसके बाद जो है हमें फर्दर फोल्डिंग मिलेगी जिसको हम विलाई कहेंगे. ठीक, और फिर इस एक विलाई के सेल्स की बात करें तो आपको एक सिंगल सेल मिलेगा, दैट इज द एंटेरोसाइट, जिस पे ब्रश बॉर्डर की प्रेजेंस मिलेगी. ब्रश बॉर्डर दैट इज माइक्रोविलाई. ओके, माइक्रोविलाई. तो ये हमारे थ्रू 3 स्ट्रक्चर हैं. तो एक किसी भी प्लेन सरफेस से अगर हम कंपेयर करते हैं इस फोल्डिंग की वजह से, तो हमारा टोटल जो इंक्रीज सरफेस एरिया हो रहा है दैट इज आपका 3 जो है बढ़ता है आपके इस स्ट्रक्चर से, वल्वली कन्वर्टी से. दूसरा जो है आपका इंक्रीज हो रहा है ये उसके बाहर, ये हमारी विलाई है तो ये 10 टाइम बढ़ा रही है सरफेस एरिया को. और फिर फाइनली जो है हमारा आपका जो ब्रश बॉर्डर है, ये ब्रश बॉर्डर बनाता हुआ जो इंटेरोसाइट में ये स्ट्रक्चर है दैट इज़ 20 फोल्ड्स. तो इस तरह से हमारा जो इंक्रीज टोटल कॉम्बिनेशन हुआ फोल्ड्स का वो 600 फोल्ड्स बढ़ गया. ओके, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चूँकि ये फोल्डिंग्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डिंग विच फाउंड इन द इंटेस्टाइन. और इंटेस्टाइन के कहाँ, इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, ड्यूडेनम एंड जेजुनम में. ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इंटेस्टाइन के डिस्टल पार्ट में चले जाएंगे वैसे ही ये फोल्डिंग्स जो है वो डिक्रीज्ड हो जाएंगी. इनके जो नंबर्स हैं वो जो है हमको ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, हमारे अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. ओके, तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है. नाउ अब हम एक बार फिर से आपको एलिस ऑफ विलस से फिर से समझाने की कोशिश करते हैं. देयर इज़ अ एलिस ऑफ विलस. ओके, मैं ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज द एपिथेलियल सेल्स. ये आप देख सकते हो, ये सेल्स में आप इसकी न्यूक्लियस ड्रॉ कर सकते हैं. इन सेंटर देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लैक्टियल. ओके, सेंट्रल लैक्टियल. ये लिम्फेटिक वेसल्स, ये हमारा सेंट्रल लैक्टियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये हमारा जो एंड प्रोडक्ट है फैट का, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेंट्रल लैक्टियल. ये हमारा सेंट्रल लैक्टियल शॉर्ट में मैंने लिख दिया. एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारी है वेन्स.
दैट इज़ द वेन्यूज़। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर जो कैपिलरीज हैं, और हमारी आर्टरी भी प्रेजेंट होगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, जैसे ब्लड कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरियोल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ विलस। दिस इज़ द एलिस ऑफ विलस, दैट इज़ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पूरे एब्जॉर्प्शन के लिए। सेंट्रल लैक्टियल में क्या हमारे एब्जॉर्ब होगा, दैट इज़ फैटी एसिड। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनमें जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो क्या होगा, दैट इज़ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर। ये हमारे एब्जॉर्प्शन का होगा बेसिक डिफरेंस। तो सेंट्रल लैक्टियल में फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा, और ब्लड कैपिलरीज में जो एब्जॉर्प्शन होगा दैट इज़ अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर होंगे। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए एक और जो मैकेनिज्म है, हमारी प्रिंसिपल मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होती है एब्जॉर्प्शन में, दैट इज़ डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूज़न, अब जैसे हम अगर सेंट्रल लैक्टियल की बात करें या एपिथेलियल सेल की बात करें, तो वो किसी भी सेल से किसी भी फूड का जो कंसंट्रेशन है हायर टू लोअर की तरफ मूव करेगा। तो ल्यूमेन में फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूमेन में कंटेंट जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन में होगा, तो वो जो है कैपिलरीज की तरफ जो है मूव करेंगी। ओके, और हमने पहले भी देखा है कि आपके जो सेल्स हैं जिसमें एंटेरोसाइट्स, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है प्रोटीन कैरियर का, तो हमारी जो ये सब्सटेंसेस हैं एक्चुअली उसको हम इस तरह से समझिए कि हमारे पास क्या है, मोनोसेक्राइड सेक्राइड क्या क्या है, सेक्राइड्स दैट आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। ओके, ये गैलेक्टोज आपके ये मोनोसेक्राइड्स हैं। ये कैसे हैं, इनका जो नेचर क्या है, वो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, पोलर है। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दे आर हाइड्रोफिलिक। अमीनो एसिड इज ऑल्सो हाइड्रोफिलिक, अमीनो एसिड भी हाइड्रोफिलिक है, पोलर है। तो ये जो पोलर सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं, वो जो हैं हम जानते हैं कि हमारी जो लिपिड बाइलेयर है वो कैसी है, कोई भी हमारी मेम्ब्रेन होगी तो वो कैसी है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई, और उसमें बीच बीच में हमारी जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट में। तो ये सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारी यहाँ से बाय कैरियर प्रोटीन से मूव कर जाती हैं, एब्जॉर्ब कर जाएंगी। बट हमारा जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड इज़ द हाइड्रोफोबिक, आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो सिंपली नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस हैं फैटी एसिड, वो हमारे इंटेस्टाइन से इसकी वॉल से जो सेल है हमारे एंटेरोसाइट्स हैं, वो जो है लिपिड लेयर है वो लिपिड डिसॉल्विंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब कि लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस, दैट इज़ द नॉन पोलर सब्सटेंस, वो इजीली जो है वो लिपिड लेयर से पास हो जाएंगी और एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये एक प्रिंसिपल काम करती है डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ओके, तो इस तरह से हमारी जो सब्सटेंसेस है वो एपिथेलियल सेल से एंटर करेंगी और ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरी से फिर जो है वो सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगी। और फैटी एसिड जो है वो हमारी जो है एंटेरोसाइट से पास होके एंटर कर जाता है। एंटेरोसाइट से उसको अलग से आप एब्जॉर्प्शन में समझेंगे, यहाँ से वो पास होता हुआ सेंट्रल लैक्टियल में आने के लिए वो क्या होगा, आपकी एपिथेलियल सेल से होता हुआ आपको ये सेंट्रल लैक्टियल में पास हो। अगर कोई फूड मटेरियल है यहाँ पे जो फैट है, तो फैटी एसिड जो यहाँ से पास करते हुए मूव कर जाएंगे सेंट्रल लैक्टियल में। तो दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन का एक बेसिक मैकेनिज्म है। ओके, थैंक यू।